Good morning, my dear students. I hope you all are keeping well and enjoying the English classes. So today I am going to start grammar, English grammar as per your syllabus. Today I am going to explain lesson 1, determiners. Determiners, it's a very important lesson and you need to study and know about it. So before I start, I want to tell you that determiners are words which determine something about a noun or a noun phrase. So basically, determiners help to determine a noun or a noun phrase. Okay, you all know very well noun, about a noun. Noun is a naming word. It is the name of a person, place or thing or feeling or animal. Okay, and noun phrase. Phrase is, what is a phrase? Phrase is a group of words, but it's a part of a sentence and it does not give complete meaning. So determiners are words which come before a noun or a noun phrase. I mean which is help to determine a noun or a noun phrase. Determine का मतलब बताते हैं ना कैसा है, कितना है, ये सब सवाल आता है तो डिटर्मिनर से डिटर्मिन करता है. डिटर्मिन का मतलब वही हुआ. ओके, so let's move on to the next slide. What are determiners? Determiners क्या है? Already मैं अभी बता रहा था. Determiners are words placed before a noun phrase Determiners are words placed before a noun phrase to indicate what a noun refers to. Determiners क्या है? ये वर्ड ऐसे वर्ड्स है जो कि नाउन फ्रेज से पहले आता है यह बताने के लिए कि वो नाउन जो संज्ञा, जो फ्रेज में जो संज्ञा है, नाउन है, वो क्या बता रहा है, क्या डिटर्मिन कर रहा है. ओके, डिटर्मिनर्स कम्स फ्रॉम द वर्ड डिटर्मिन. डिटर्मिनर्स कौन सा वर्ड से आता है? डिटर्मिन से ही आता है. डिटर्मिन से ही डिटर्मिनर्स बना हुआ है. डिटरमाइन से, डिटरमाइन से ही डिटर्मिनर्स बना हुआ है. ठीक है, मीन्स टू डिटरमाइन समथिंग. सो डिटर्मिनर्स हेल्प्स टू डिटरमाइन समथिंग. इट टेल्स अबाउट अ नाउन और ए नाउन फ्रेज. समथिंग अबाउट अ नाउन और ए नाउन फ्रेज. It must not be misunderstood as adjectives. Determiners are not adjectives. Okay, my dear students, don't get confused. Determiners with adjectives. Adjectives are words that qualifies a noun or a pronoun. But determiners basically come before a noun or a noun phrase. Okay. So it must not be confused with adjectives. Adjectives are different and determiners are different. Okay. Determiners always talk about nouns, the name of a place, person or thing. Determiners क्या करता है? हमेशा नाउन के बारे में बताता है. कोई नाउन में कुछ जगह के बारे में, तुम नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई जगह के नाम को नाउन कहते हैं, सभी को मालूम है. So it talks about the nouns, it talks about the place, it talks about the person, it talks about the thing, it talks about the animal. Okay? We use determiners basically before a noun or a phrase. So basically determiners are used before a noun or a noun phrase. संज्ञा से पहले लगता है, नाउन से पहले लगता है, नहीं तो नाउन फ्रेज से पहले लगता है. इस शब्द को हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है,
So noun phrase is a group of words. First come to know what is noun phrase. Noun phrase is a group of words with noun acting as the main part. तो noun phrase क्या है? एक group of words है. Noun phrase क्या है? मैं पहले ही बताया हूं. Noun phrase or phrase is a group of words and it's a part of a sentence. Okay? And what it does? It comes with noun. Noun phrase basically comes with noun. And which is the main part? Noun is the main part. Because the noun phrase speaks about a noun. Noun phrase जो है, जो part of a sentence है, वो किसके बारे में बात करता है? Noun के बारे में. Okay? For example, a bad man. देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे खाली मैं लिखूं बैड मैन. अगर मैं खाली लिखता हूं, केवल लिखता हूं बैड मैन. बैड मैन का मतलब क्या हुआ? बुरा आदमी. मैन क्या हो गया? ये नाउन हो गया. क्लियर? बैड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इट्स क्वालिफाइंग अ नाउन. इट्स क्वालिफाइंग मैन. इससे पहले अगर हम ए लगा देते हैं तो ये बैड मैन क्या हो गया? बैड मैन क्या हो गया बेटा? ये हो गया फ्रेज हो गया. दिस इज बिकॉज बेसिकली अ नाउन फ्रेज. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ठीक है? इससे पहले क्या लगा है? ए. ए इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल. इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिकल, indefinite article. Okay, an article is a part of determiners. We will be studying about articles and determiners. While teaching you types of determiners, I will be teaching you about articles also. Okay, so a bad man, a इस फ्रेज से पहले आया है, तो ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? डिटर्मिनर्स. ये हो गया डिटर्मिनर्स. ओके, क्लियर? Now you see, determiners tell us how many or how much about the noun. So determiners, what they tell us? How many or how much about a noun. Okay? How much? जैसे हम लिख देते हैं लिटिल सुगर. सुगर क्या हो गया? नाउन हो गया. उससे पहले क्या हो गया? लिटिल हो गया. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. ये हो गया डिटर्मिनर. ओके, हाउ मच ऑफ ए थिंग? हाउ मच सुगर इज देयर इन द जार? कोई क्वेश्चन पूछता है. देयर इज लिटिल सुगर इन द जार. ओके, क्लियर? हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे बेटा. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज स्टैंडिंग हियर. इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट ए बॉय. बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉय के बारे में. बॉय क्या है? बॉय इज ए नाउन. एंड व्हाट कम्स बिफोर ए बॉय? ए कम्स बिफोर ए बॉय. So, a determinant takes place before a noun or a noun phrase. So, here A is a determiner. Okay, and boy is noun. A boy is standing here. So, A is basically a type of article. This is a type of indefinite article. You might have read about indefinite article, definite articles. Okay, indefinite articles, the comes, and in indefinite articles, A and comes. So, articles are part of determiners only. Okay? Don't get confused. Articles are not adjectives, my dear students. Okay? Now you see, an apple a day keeps the doctor away. एक एप्पल रोज अगर खाओगे
तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर से दूर रहना पड़ेगा, सबको जानते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस प्रोवर्ब, व्हाट दिस प्रोवर्ब मीन. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल. एप्पल क्या है? ये नाउन है, और एप्पल से पहले क्या आया है? एन. तो एन इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर. एन एप्पल, एक एप्पल, एक एप्पल, दो एप्पल, टू एप्पल्स. अगर मैं बोलता हूं टू एप्पल्स, ऐसे टू हो गया नंबर, दैट बिकम्स डिटर्मिनर ऑफ नंबर. ओके, इस सब के बारे में हम पढ़ाएंगे. हाँ, नंबर वाला भी है. हाँ, कितने सारे डिटर्मिनर्स है, पॉजिटिव्स है, ढेर सारे डिटर्मिनर्स के बारे में, एक्चुअल जो डिटर्मिनर्स आप लोगों को पढ़ना है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे. ओके, नाउ आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए. अभी से क्लियर हो जाए. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़े, उससे पहले क्लियर हो जाए डिटर्मिनर्स इन सब सेंटेंसेस में कौन कौन है और क्या क्या बता रहे हैं. सो इन ऑल द सेंटेंसेस वी आर टॉकिंग अबाउट ए नाउन. नाउन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ यू सी, द शो वाज एक्सीलेंट. शो कैसा था? बहुत ही अच्छा था, बहुत सुंदर था. शो मीन्स कोई फंक्शन, कोई नाटक ले लो, ठीक है, कोई डांस ले लो. बहुत ही सुंदर था. एक्सीलेंट का मतलब बहुत, बेहद सुंदर. हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट द शो. Show is basically a noun over here. I am talking about a show. And which show I am talking about? A specific. A specific means particularly हम उस शो के बारे में बता रहे हैं. The show. हाँ, वह शो. द का मतलब यहाँ ये शो नहीं बोल रहे हैं, ये शो नहीं बोल रहे हैं. द शो मीन्स वह शो बहुत ही एक्सीलेंट था. द शो. सो इधर पार्टिकुलरली this is used in particular case. Specifically this show is marked by the, so the becomes a determiner, and this is an example of definite article, the. Okay, now come to the next example. These fruits are rotten. ये फल सड़ गए हैं. These fruits में ढेर सारे फ्रूट्स हैं. ये फल सड़ गए हैं या सड़े हुए हैं. ठीक है, रॉटन का मतलब सड़ा हुआ. सो व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स. कौन से फ्रूट्स? दीज फ्रूट्स. सो दीज फ्रूट्स क्या हुआ? नाउन हो गया. उससे पहले कौन डिटरमिन कर रहा है फ्रूट्स को? फ्रूट्स को कौन डिटरमिन कर रहा है? दीज डिटरमिन कर रहा है. ये हो गया डिटर्मिनर. क्लियर? डी मीन्स डिटर्मिनर. मैं डी से डिनोट कर रहा हूं डिटर्मिनर को, और एन से नाउन को डिनोट कर रहा हूं. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन. दोज आर माई ड्रेसेस. दोज आर माई ड्रेसेस. तो यहां हम क्या देख रहे हैं? आर माई ड्रेसेस. ये क्या है? आर माई ड्रेसेस क्या है? नाउन फ्रेज है. दिस इज नाउन फ्रेज. और नाउन फ्रेज से पहले क्या आया है? दोज आया है. वे सब. दोज मीन्स वे. वे हमारे ड्रेसेस हैं. वे हमारे ड्रेसेस हैं. दिस इज बेसिकली प्लूरल. ओके, दिस इज बेसिकली प्लूरल. दोज, दैट का प्लूरल है दोज. ओके, दैट हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज माई कार. हाँ, तो दोज आर माई ड्रेसेस. दैट का प्लूरल होता है दोज. एंड दोज कम्स बिफोर अ नाउन फ्रेज. सो दोज इज अ डिटर्मिनर ओवर हियर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज ए डॉग. दिस इज ए डॉग. हम किसकी बात कर रहे हैं? कुत्ते की बात कर रहे हैं, डॉग की बात कर रहे हैं. यह क्या है? एक क्वेश्चन पूछता है क्या है? दिस इज ए डॉग. यह एक कुत्ता है. ठीक है, दिस इज ए डॉग. सो डॉग बिकम्स अ नाउन ओवर हियर. ओके,
और इज ए डॉग क्या है, ये फ्रेज है, और फ्रेज से पहले, नाउन फ्रेज से पहले क्या लगा हुआ है, दिस लगा हुआ है, तो दिस इज डिटर्मिनिंग अ डॉग। लेकिन इससे पहले, डॉग के पहले भी कुछ है, ए है, डॉग से पहले भी कुछ है, तो यहां इसको भी डिटर्मिनर आप ले सकते हैं, आर्टिकल है, एक कुत्ता, हाँ, और दिस, इसके बारे में हम कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मेनली डिटर्मिनर्स हम लोग इसको लेंगे, दिस, ओके, ये भी डिटर्मिनर है। आपको बाद में हम डिटर्मिनर, प्री डिटर्मिनर पढ़ाएंगे, मतलब प्री डिटर्मिनर डिटर्मिनर से पहले आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द रेस्टोरेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हम किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द रेस्टोरेंट। किसकी बात कर रहे हैं, द रेस्टोरेंट, दैट इज द रेस्टोरेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वाज टॉकिंग अबाउट। किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के बारे में। रेस्टोरेंट क्या है, ये नाउन है, नाउन से पहले क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज, वो क्या है, दैट इज ऑल्सो डिटर्मिनर। क्लियर, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? नाउ कम टू रूल्स ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करवाएंगे, तो उससे पहले जरूरी है कि आप रूल्स जान ले, किस प्रकार से डिटर्मिनर्स का यूज होता है, क्या क्या नियम है डिटर्मिनर्स यूज करने से पहले, ये आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। यू नीड टू नो अबाउट द रूल्स ऑफ डिटर्मिनर्स, बिकॉज विदाउट नोइंग द रूल्स ऑफ डिटर्मिनर्स यू कैनॉट प्रोसीड फर्दर, ओके, योर डाउट मे नॉट बी क्लियर। सो रूल्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखिए, डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन, नॉट आफ्टर इट। डिटर्मिनर्स का हमेशा उपयोग नाउन से पहले किया जाता है, नाउन का बाद नहीं। याद रखिए, डिटर्मिनर्स का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, एक कंडीशन है, दिस इज ए कंडीशन, हाँ, नेवर आफ्टर इट। वी डोंट यूज डिटर्मिनर्स आफ्टर ए नाउन, ओके, रिमेंबर दिस, always remember this, the determiners are never used after a noun, but they are used before a noun, okay, or a noun phrase. Determiners are used before any modifier, used before the noun. Determiners कोई मॉडिफायर के पहले भी यूज हो सकता है, नाउन से पहले कोई मॉडिफायर लगा है, हाँ, मॉडिफायर क्या होता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन की विशेषता को बताता है, जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, खासकर एडजेक्टिव ले लो, गुड बॉय, हाँ, हम यहां लेते हैं गुड बॉय। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, बेटा ध्यान से देखना, ये अगर समझ जाओगे तो डिटर्मिनर्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या लिखे हैं, गुड बॉय। गुड बॉय में बॉय क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसको, गुड को, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। अब इसका भी विशेषता बताने वाला कुछ है, इसके बारे में कहने वाला है। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड बिफोर एनी मॉडिफायर्स। इससे पहले अगर मैं लिख देता हूं अ गुड बॉय, ए क्या हो गया, दिस बिकम्स अ डिटर्मिनर। हम किसकी क्या बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहा है, गुड बॉय के बारे में बात कर रहा है। गुड बॉय क्या हो गया, गुड बॉय बिकम्स अ फ्रेज, ए फ्रेज हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ओके। उससे हम पहले लगाते थे ए, पूरा अगर सेंटेंस बनाना है तो ऐसे लिख देंगे, दिस इज, सॉरी दिस इज अच्छा रहेगा, ही इज, सॉरी he is grammatically correct, he is a good boy। क्लियर हुआ, सेंटेंस क्लियर हो गया। इसमें आप लोग देख लिए मॉडिफायर्स क्या है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, उससे पहले भी डिटर्मिनर्स लगता है,
I'll just complete this slide. Determiners are used before a noun phrase. जैसे मैंने बताया, determiners noun phrase से पहले लगता है, noun से पहले लगता है, सही बात है, noun phrase से भी पहले लगता है determiners. Okay? Determiners are used before a singular noun generally. ज्यादातर generally means ज्यादातर determiners का use singular noun से पहले होता है. देखो बेटा, ये बात तय कर लो कि डिटर्मिनर्स का यूज जनरली सिंगुलर नाउन से पहले होता है. ठीक है, ज्यादातर. बहुत ही ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्लूरल नाउन्स के बाद पहले होता है. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे. ओके, वी यूज डिटर्मिनर्स विथ प्लूरल नाउन स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट ए स्पेसिफिकेशन. प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स कब यूज करता है? जब वो नाउन स्पेसिफिक रहता है. वो जो प्लूरल नाउन जो है बहुत स्पेसिफिक रहता है, मतलब बहुत खास रहता है, बहुत पार्टिकुलर रहता है. ठीक है, बहुत पार्टिकुलर रहता है. ठीक है, वी यूज डिटर्मिनर्स विथ प्लूरल नाउन स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन. इसको रब करके मैं बताता हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं इसके बारे में. See here, स्पेसिफिकेशन मतलब पार्टिकुलरली अबाउट ए नाउन. नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफाई करना, उसी को बोला जाता है स्पेसिफिकेशन. जैसे मैं लिखूं, पेन्स आर माइन, पेन्स आर माइन, पेन्स मेरे हैं, कलम मेरे हैं. कौन सा कलम? कौन सा कलम? स्पेसिफाई कर रहा है. दोज पेन्स, वे कलम, ओ कलम. ओ कलम मेरे हैं, मैंने एक कलम नहीं है, ढेर सारे कलम है. तो पेन्स क्या है? पेन्स प्लूरल है. और इससे पहले अगर हम दोज लगा देते हैं तो दोज स्पेसिफाई कर रहा है, बेसिकली पेन्स के बारे में बता रहा है. तो पेन्स यहां स्पेशल है. कौन सा पेन्स? ढेर सारे पेन है. वे पेन्स, ओ पेन्स. सो ये दो जो हो गया, ये हो गया डिटर्मिनर्स. और पेन्स क्या हो गया? नाउन हो गया. क्लियर? इस केस में प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स लगेगा. ठीक है, ऐसे सिंगुलर नाउन्स के साथ ही जनरली डिटर्मिनर्स लगता है सामान्य रूप से और ज्यादातर. विथ प्लूरल नाउन्स विच जनरली डू नॉट यूज डिटर्मिनर्स. विथ प्लूरल नाउन्स वी जनरली डू नॉट यूज डिटर्मिनर्स. वी, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है. विथ प्लूरल नाउन्स वी जनरली डू नॉट यूज डिटर्मिनर्स. सो ज्यादातर हम लोग डिटर्मिनर्स का प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं करते हैं. एक्सेप्शनल केस में करते हैं, जब स्पेसिफिकेशन वाली बात आती है, कुछ नाउन के बारे में कुछ स्पेशल हम बात करते हैं, कुछ विशेष जानकारी देते हैं, विशेष बात करते हैं और खास बात करते हैं, तब जाकर प्लूरल नाउन से पहले डिटर्मिनर्स लगता है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, rules of determiners have been taught to you. So I will proceed further in the next class. Thank you so much.